नमस्कार, न्यूज प्रीव्यू देख रहे हैं आप सब। मैं हूं आपके साथ साहिल केरनी। नजर डालेंगे कुछ खास और अहम खबरों के ऊपर। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने जम्मू कश्मीर की हालत में हुए सुधार का हवाला देते हुए कहा है कि यह सब 2019 के बाद ही संभव हो पाया है। जम्मू कश्मीर शांति की ओर बढ़ रहा है और यही वजह है कि आज यहां भारी मात्रा में पर्यटक पहुंच रहे हैं और इससे सूबे की अर्थव्यवस्था में भी भारी सुधार हुआ है। श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी के 10वें दीक्षांत समारोह में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे उपराष्ट्रपति ने अपने संबोधन में यह भी कहा कि 2024 के आम चुनावों में लोगों की भारी भागीदारी ने भी यह साबित कर दिया कि जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र की बहाली हो चुकी है और ये सूबा अब वैश्विक आकर्षण का केंद्र बन चुका है। यहाँ भारी मात्रा में निवेश हो रहा है और लोगों की उम्मीदों को पंख लग चुके हैं। Sudesh Dhankar ji with a shawl and a memento. Felicitation of the Honorable Lieutenant Governor, UT of Jammu and Kashmir and Chancellor Shri Mata Vaishno Devi University. Felicitation of the Honorable Chief Minister, Union Territory of Jammu and Kashmir. Chancellor Sir, Vice President of India, Sri Jagdeep Dhankar ji, Academic Council, and other distinguished guests. Standing first in the respective program of the study, Shefali Thakur, MA English, Akriti Mahajan, MSc Biotechnology. In 2019, a big change has taken place. In the sacred land of Mata Vaishno Devi, a new pilgrimage began. The journey from isolation to integration, the winds of change have brought peace and progress. For the first time, the region experienced true national integration. There was a demand by a great son of the soil. एक देश में एक निशान, एक प्रधान, एक विधान. That is accomplished. And more will happen, I'm sure about it. Disturbance has yielded to order. Where we witness disorder as the normal order, we now have the real order. Jammu and Kashmir witnessed the highest voter turnout in 35 years. During 2024 Lok Sabha polls, and just take note of it, with a 30-point increase in Kashmir Valley participation, democracy has found its real voice, its real resonance. I reiterate, in 2023, over 2 crore tourists visited Jammu and Kashmir. The result was boosting local economy. The heaven on earth is now hope and prosperity hub. It is a global attraction. Every investment proposal in New Kashmir isn't just about capital, it's about truth being restored, faith being rewarded. The change is not imperceptible. It is perceptible. Perception has changed. Ground reality is changing. Hopes of the people are soaring. Private investment proposals I am happy to share with you.
worth rupees 60,000 crores were received in 2 years. What does it signal? Economic interest in the state of Jammu and Kashmir, in this area. Foreign direct investment entered Jammu and Kashmir for the first time after 2019, with multiple international companies showing interest. The area is no longer a story of conflict, but it is confluence of confidence and capital. वहीं उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने दीक्षांत समारोह के दौरान अपने संबोधन में उम्मीद जताई कि इस दीक्षांत समारोह में शामिल बैच के पास अपनी प्रतिभा दर्शाकर जम्मू कश्मीर और देश की तकदीर बदलने का ये सुनहरा अवसर है। उन्होंने दीक्षांत समारोह में मेडल विजेताओं में बेटियों की संख्या बेटों से ज्यादा रहने का हवाला देते हुए बताया कि ये इस बात का संकेत है कि राष्ट्र निर्माण के नेतृत्व में बेटियां करने वाली हैं। A memento and painting. आज के कन्वोकेशन में शामिल बैच के पास भी एक अनूठा अवसर है कि वो अपने स्पेशल नॉलेज और स्किल्स के माध्यम से जम्मू कश्मीर तथा भारतवर्ष की तकदीर बदल सकते हैं। मैं सभी स्टूडेंट्स को, उनके माता पिता को, उनके गुरुजनों को भी बधाई देना चाहता हूं। मुझे विश्वास है कि आज दीक्षित हो रहे युवा, उनमें समर्पण, दृढ़ संकल्प और विश्वास की कोई कमी कभी नहीं रहेगी। मुझे अत्यंत गर्व भी है कि मेडल विजेताओं में बेटियों की संख्या बेटों से लगभग दुगनी है। 17 बेटियों ने जहां गोल्ड मेडल प्राप्त किया है, वहीं 9 बच्चों को मेडल मिला है। इसके अलावा सर्टिफिकेट ऑफ डिस्टिंक्शन तथा इन्फोसिस फाउंडेशन प्राइज में भी हमारी बच्चियों ने ही बाजी मारी है। ये हम सबके लिए गर्व का विषय है। ये इस बात का संकेत देता है कि राष्ट्र निर्माण का नेतृत्व हमारी बच्चियां करने वाली हैं और इस महान देश के भाग्य विधाता बनकर समाज की समृद्धि को भी सुनिश्चित करने वाली हैं। मैं 2 और विशिष्ट महानुभावों को, जिनको मानद उपाधि दी गई है, डॉक्टर शिवदत्त निर्मोही जी, डॉक्टर राम सेवक शर्मा जी को भी हृदय से बधाई देना चाहता हूं। ये आपके लिए नहीं, हमारे विश्वविद्यालय के लिए भी गौरव का विषय है कि आप 2 महान व्यक्तित्वों को आज मानद पीएचडी की उपाधि विश्वविद्यालय दे सका। दूसरी ओर दीक्षांत समारोह में शामिल मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने अपने संबोधन में कहा कि दीक्षांत समारोह मात्र डिग्री लेने के नहीं, बल्कि बरसों की मेहनत और सपनों को सच्चाई में बदलने के प्रतीक होते हैं। उन्होंने डिग्री हासिल करने वालों की सराहना करते हुए कहा कि वो कई बाधाओं को पार कर इस मुकाम पर पहुंचे हैं और विजयी हासिल की है। मुख्यमंत्री ने इन युवाओं के टीचरों और अभिभावकों का हवाला देते हुए कहा कि उनके त्याग और समर्पण की भावना रंग लाई है और आज नतीजा सबके सामने है। उन्होंने कहा कि सफलता सिर्फ मील पत्थर हासिल करने में नहीं, बल्कि जीवन में सामने आने वाली चुनौतियों को आप किस तरह पार करते हैं, इसका भी प्रतीक है। और क्या कुछ कहा मुख्यमंत्री ने, आइए आपको बताते हैं। A convocation is not just about receiving degrees. It is a milestone that marks years of hard work, resilience, and dreams turned into reality. Graduates, today as you sit here, adorned in your convocation robes, you are not just individuals earning degrees. You are torchbearers of knowledge, perseverance, and dedication. You have faced challenges, sleepless nights, and moments of doubt. But despite it all, you emerged victorious. Today is a testament to your spirit and determination. Congratulations. Let's also take a moment to acknowledge those who made this journey possible. Your parents, your teachers, your mentors, your guides, your friends, who supported and guided you. Their sacrifices and encouragement have played an integral role in shaping your success. We are privileged to be a part of an institution named after Mata Vaishno Devi, the embodiment of power, wisdom, and devotion. Her journey to the Trikuta Hills
symbolizes patience, courage, and righteousness, values that each of you should carry as you step into the next phase of your life. Like Mata Vaishno Devi's unwavering faith and determination, you too will encounter obstacles and tests. But remember, success is not just about achieving milestones. It is also about how you overcome challenges, stay true to your principles, and uplift others along the way. You are entering a world that is rapidly evolving, a world of artificial intelligence, climate change, startups, and global competition. Your degree is not just a piece of paper. It is your key to making a difference. सांबा पुलिस ने 2 महिला चोरों को रंगे हाथों पकड़ा है। पकड़ी गई इन दोनों महिलाओं से हजारों रुपए का चोरी का सोना बरामद किया गया है। ये दोनों महिलाएं सुंब के दुनाई गांव से धर-दबोची कई, जो सामान बेचने के बहाने लोगों के घर घर जाकर महिलाओं को निशाना बनाती थी और मौका पाकर चोरी को अंजाम देती थी। दुनाई के स्थानीय युवाओं की सतर्कता के चलते दोनों महिलाएं चोरों को रंगे हाथों पकड़ लिया गया और पुलिस भी मौके पर पहुंची और इन दोनों को अपने साथ ले गई। बड़ी ब्राह्मणा के पल्ली गांव में चोरों ने एक सूने मकान को निशाना बनाया है। चोरों ने इस मकान में सेंधमारी की और वहां से सोना और हजारों रुपए की नकदी चुराकर रफूचक्कर हो गए। चोरों ने इस वारदात को तब अंजाम दिया जब इस घर के सभी सदस्य किसी रिश्तेदार की शादी में गए हुए थे। ये सब लोग जब वापस पहुंचे तो वहां की हालत देखकर इनके होश उड़ गए। वहीं इस चोरी की जानकारी पुलिस को दे दी गई, जिसने मामला दर्ज कर अपनी कार्रवाई शुरू कर दी। ये तो दगा रहा है। कोई लगभग 10:30 या पौने 11 बजे से 11 बजे तक अस वापस आई थे। जिसले हम बाहर पुज्जे थे मैं दरवाजा लगा खोलन तो अगर ताला टुटे पे उसले समझिए कि कुछ ना कुछ अंदरों निकली है पक्का। अंदर गए थे, अलमारी से जिन्ने भी कपड़े वगैरह है सारे बाहर रखे थे, जिन्ना भी पर्स वगैरह है सारे कड्डिए बाहर रखे। अलमारी पूरी ना ताला तोड़े, अलमारी का दरवाजा पुट्टे दा। जी दूई अलमारी ही वह भी तोड़ी दी। जिन्ना भी समान है सारा कट्ठा करिए ढेर लाइए पूरा फंडे दा। मम्मी ने जिन्ना अपना समान रखे था, जो भी कमेटी निकली थी एक, बाकी गोल्ड हा। बाकी एक बंदा राती फड़िया हा ग्रां फिरा हा, सानू दिखे नस्या भी वो, अस पुछया भी ओल्ले नशे हालत सा ठीक ठाक हो, जब उन्हें सानू धक्के धुक्के मारे नसी गया। राती वो फड़ी असें पुलिस भी देई ओड़े। ये मैं आखा करता कि जी चोरियां हुआ करदी ना, ये कोई चिट्टे कारण या नशेड़ियां चोरी करा करते हैं हैं। तुसें दिखा होना कि पहले थोड़े चिर पहले सोलर की किन्ने कोई 4 लाख की उत्थे भी चोरी हुई है हैं। हूँ ये मैं प्रशासन अगे बड़े आगाह करना कि प्रशासन ये ध्यान दे, क्योंकि प्रशासन ने हूँ अक्खां इ'यां मुद्दी लेदियां मिगी लगदी, क्योंकि इन्नी चोरियां हुआ करदियां ना। ये मतलब अज तक घरें लोकें बनने लगी पे। देखो ये घर ग्रां दे बिच घर है इंदे घरा दे बिच मतलब कि चोरी हुई है। लक्खें रुपए का सोना इंदा चोरी कर लिया। कि'यां इन्हें मुड़े कमाया पैसा कट्ठा किया है, इंदी मावें सोना थोड़ा मता जो रखे था उन लोगों, ठीक है। तो मैं सारा का सारा चोरी हो चुका। तो मैं फिर प्रशासन अगे ये अपील करना चाहना कि इसी जल्दी से जल्दी इसे पकड़ा जाए। चोरी मेंढर में वाहन चालकों और ट्रैफिक पुलिस में ठन गई है। वाहन चालकों ने आज मेंढर में ट्रैफिक पुलिस के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन करते हुए उन्हें बेवजह तंग करने के आरोप लगाए। दूसरी ओर ट्रैफिक पुलिस ने वाहन चालकों द्वारा लगाए गए आरोपों का सिरे से खंडन किया। ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि उन वाहनों को जब्त किया जा रहा है जो बिना दस्तावेजों की सड़कों पर दौड़ रहे हैं। तो
कुछ गाड़ियों को यहाँ पे सीज किया गया। तो उसकी वजह से ट्रांसपोर्टर भाई आपस में लड़ने लगे, खास करके ये जुगाल स्टैंड है जहाँ पे ये जुगाल छतराल की गाड़ियाँ जा रही हैं। इस साइड पे सबसे ज्यादा नाके लगते हैं और किसी तरह कोई जाता नहीं है। ये ट्रांसपोर्टर कह रहे हैं कि 1000 रुपया एंट्री कुछ गाड़ियों से लेते हैं, उनको छोड़ देते हैं। लिहाजा एक बोल रहे हैं कि या सबको छोड़ा जाए तो या सबको सीज किया जाए। इनका कहने का यही है, जब इनसे एंट्री ली जाती है उन्हीं गाड़ियों को छोड़ा जाता है। उसकी वजह से सुबह इनकी गाड़ियां कुछ सीज हुई है, इनका आपस में लड़ाई झगड़ा हो गया, जिसकी वजह से कोई लोगों के सिर में चोटें भी आई है। मुझे ये बताओ कि एसओ साहब को ये सोचना चाहिए, ये बेरोजगार नौजवान पढ़े लिखे हुए MA BA लोग ओवर एज हो चुके हैं, इनको सुसाइड करने के बगैर और कोई चारा नहीं रहा है। लिहाजा मैं मीडिया के माध्यम से ये कह देना चाहता हूँ जम्मू कश्मीर ट्रांसपोर्ट यूनियन की तरफ से कि एसओ साहब को ये सोचना चाहिए कि इनके साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। ये ट्रांसपोर्ट भूखे हैं, 2-3 दिन बच्चे हैं, माँ बाप है, कहाँ से दवाई दारू और रिज़्क लाएंगे और अपने बाल बच्चे की रोजी रोटी चलाएंगे। आज ही सुबह हमने छोटा सा एक नाका लगाया था, जिसमें हमने गाड़ियाँ चेक की। उनको 3 गाड़ियाँ थी जिनके डॉक्यूमेंट नहीं थे, उनको मैंने सीज़ किया है, जिसमें एक इको थी और 2 सम्मो हैं, उनको भी सीज़ किया है। तो वो सीज़ करके थाने भेजी हैं। तो 2 तारीख को मैंने जान किया था, 2 तारीख से लेके आज 15 तारीख है, 33 गाड़ियाँ जो हैं बिना डॉक्यूमेंट के जो थी, जिनमें मोटरसाइकिल भी हैं और 4 व्हीलर भी हैं, जिनके परमिट एक्सपायर थे और जिनके इंश्योरेंस नहीं थे, उनको हमने सीज़ करके थाने में लगाया गया। सरकार के नशा मुक्त भारत अभियान को दिन ब दिन गति मिलती जा रही है। कठुआ में इस अभियान के तहत जिला पुलिस द्वारा क्रिकेट टूर्नामेंट करवाई जा रही है, जिसकी आज शुरुआत हुई। कठुआ के SSP शोभित सक्सेना ने इस क्रिकेट टूर्नामेंट का उद्घाटन किया, जिसमें जिले के स्कूलों और कॉलेजों के खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। पुलिस के सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत आयोजित इस टूर्नामेंट के माध्यम से युवाओं को नशे से दूर रहकर खेलों की तरफ रुझान बढ़ाने का आह्वान किया जा रहा है। अच्छी गेंद करुण की, उसको अच्छे तरीके से खेला बिट्टू ने, कोई रन नहीं है। कठुआ डिस्ट्रिक्ट में एक नशा मुक्त अभियान के तहत एक बच्चों की सीरीज स्टार्ट करी है, जिसमें कॉलेज और स्कूल के बच्चे खेल रहे हैं। तो उसमें काफ़ी सारा हमें पार्टिसिपेशन मिला। 10 टीमें इस फर्स्ट फेज़ में हम लोग खिला रहे हैं, जिसमें 3 कॉलेज की टीम है और 7 जो है स्कूल्स की टीम है। हमसे स्कूलों ने ये भी रिक्वेस्ट की थी कि एग्ज़ाम्स ख़त्म होंगे फिर दोबारा रखेंगे, तो वो भी हमारा प्लान है। इस सीरीज़ के थ्रू हमारा मैसेज ये है कि हमें नशा मुक्त रहना है, नशे की आदतों से दूर रहना है और नशीले पदार्थ को हमेशा के लिए ना कहना है। हमारा एक सबका ब्राइट फ्यूचर है, यूनाइटेड फ्यूचर है। तो जो यूथ है वो मिलके इस सीरीज़ के थ्रू एक यूनाइटेड फ्रंट रखेगी, जिसमें वो नशे को ना करेगी। जल्दी ही एक हम बड़ा ड्रग डिस्पोजल का प्रोग्राम भी करने जा रहे हैं और हमने कुछ लोगों को भी आइडेंटिफाई करके रखा है जिनकी प्रॉपर्टी अटैचमेंट करेंगे। हमारा पूरा यकीन है कि इन स्टेप्स से हम लोग जो बड़े तस्कर हैं उनकी कमर तो तोड़ेंगे ही, प्लस हम लोगों को अब एक बड़ा अच्छा सपोर्ट मिल रहा है मीडिया से और पब्लिक से। दूसरी ओर नशा मुक्त भारत अभियान के तहत जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा आरएसपुरा में मैराथन का आयोजन किया गया। 5 किलोमीटर की इस मैराथन में स्कूलों कॉलेजों के विद्यार्थियों के अलावा अन्य लोगों ने भी भाग लिया और विजेताओं में इनाम भी बांटे गए। पुलिस ने बताया कि युवाओं को नशे से दूर रखना पुलिस का दायित्व है और यही वजह है कि नशा मुक्त भारत अभियान के तहत ऐसी गतिविधियों का आयोजन कर युवाओं के साथ साथ समाज के सभी वर्गों को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक किया जा रहा है। निखिल ने आपको डिटेल में बता दिया कि मैं ये हाफ मैराथन था जो कि JKS रेंज हमारे DIG सर शिव कुमार शर्मा साहब जो IPS है उनकी डायरेक्शन से और हमारा कैप के प्रोग्राम रहते हैं, तो हमने सीरीज ऑफ प्रोग्राम आपको सर इनको देंगे सर, चलो दोनों ले लेते हैं। ये स्मृति चिन्ह भेंट करके सम्मानित करें
और हम आशा करेंगे कि भविष्य में भी इसी प्रकार वो माता की। कश्मीर पुलिस आपने देखा ही होगा कि किसी भी लेवल पे हमेशा समाज में जो मतलब हमारी कुछ दिक्कतें होती है उनको दूर करने में आगे रहती है। तो उसी में जो आज के दौर में हम देख रहे हैं कि ड्रग एब्यूज़ का काफ़ी ज़्यादा वो प्रभाव है, तो उस चीज़ को रोकने के लिए सारे ही लोग लगे हुए हैं। तो जम्मू एंड कश्मीर पुलिस तो फ्रंट पे है। तो इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज हमारे रेंज पुलिस हेडक्वार्टर से डीआईजी हमारे शिव कुमार शर्मा सर जो है उनकी डायरेक्शंस पे हमने यहाँ पर एक 5 किलोमीटर का मैराथन ऑर्गेनाइज कराया आरएसपुरा सब डिवीज़न में। तो इसमें सारे तबके के लोगों को हमने इनवाइट किया था। तो चलिए आपने देखा कि डिफरेंट स्कूल से बच्चे भी आए थे, बाकी सेक्शन से भी लोग आए थे, तो बखूबी ये अरेंजमेंट्स हुए थे। तो अभी ये कंक्लूड हुआ है ये प्रोग्राम। तो इसमें हमारा यही रहता है कि लोग, हमारे बच्चे, हमारे यूथ, ये जो नशा है, ड्रग एडिक्शन है, इसमें नशा मुक्त भारत के अभियान के तहत ये जो कैंप में हमारे प्रोग्राम्स होते थे, उसी संदर्भ में ये जो प्रोग्राम था आज यहाँ सक्सेसफुली कंक्लूड हो गया, ऑर्गेनाइज हुआ, कंक्लूड हो गया। और मैसेज लाउड एंड क्लियर है कि हमें लोगों को अवेयर करना है, बच्चों को, यूथ को, सबको अवेयर करना है, हर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को अवेयर करना है कि ड्रग्स से तबाही है, उससे मतलब जो हमारा समाज है खोखला हो रहा है, इससे दूर रहने की ज़रूरत है। सोनकोट में 9 फरवरी से जारी पीर पंचाल विंटर फेस्टिवल की एक कड़ी के तहत आज वॉलीबॉल टूर्नामेंट की शुरुआत की गई। वॉलीबॉल टूर्नामेंट में लड़कों के साथ साथ लड़कियों की टीमें भी भाग ले रही हैं। सेना द्वारा आयोजित पीर पंचाल विंटर फेस्टिवल के माध्यम से युवाओं की खेलों में भागीदारी बढ़ाने के साथ साथ सेना के साथ भी उनका समन्वय बढ़ाया जा रहा है। दरगर फिजिकल एजुकेशन टीचर, साथ में हमारे फिजिकल एजुकेशन टीचर ये भी अभी टास्क के लिए सिक्का उछाला। हमारी पीर पंजाल की पूरी जनता को बताया कि पीर पंजाल फेस्टिवल जो हमारे सुरनकोट में चल रहा है, आज उसका एक पार्ट है जो हमारी ख़वातीन के लिए, खास करके हमारी गर्ल्स को आगे लाने के लिए हमारी इंडियन आर्मी ने एक अच्छी सोच रख के वॉलीबॉल का टूर्नामेंट आज यहाँ पे इनकाद हुआ है और जिसकी आज इनागोरेशन की है हमने। मैं उसके लिए इंडियन आर्मी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने हमेशा गर्ल्स के लिए सोचा और उनको आगे लाने के लिए अपना पूरा योगदान दिया। यहाँ पे ख़वातीन को आगे लाना बहुत ज़रूरी है और ये एक इंडियन आर्मी का बहुत अच्छा स्टेप है और हम इसका इंडियन आर्मी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ और उनसे गुजारिश करूँगी कि वो आगे भी हमारी ख़वातीन के लिए ऐसे ही इनका करते रहें, स्पोर्ट्स हो या कोई भी फील्ड हो, ताकि ख़वातीन को हमेशा आगे आने का मौका मिलता है। तो जिस तरीके से यूथ को प्रमोट किया जा रहा है कि वो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ की तरफ अपना ध्यान केंद्रित करें, तो मैं इंडियन आर्मी का शुक्रिया अदा करूंगा। उन्होंने एक अच्छा प्लेटफॉर्म हमें दिया है। जिस तरीके से हमारी इंडियन आर्मी हमारे बॉर्डरों की रक्षा करती है, उसी तरीके से वो यही चाहती है और हमारे प्राइम मिनिस्टर भी यही चाहते हैं कि यूथ जो है वो मजबूत होना चाहिए। यूथ आर द बिल्डर्स ऑफ एवरी नेशन। जिस देश का यूथ मजबूत होगा वो देश खुद ब खुद जो है मजबूत होगा और आगे बढ़ेगा। तो जिस तरीके से इंडियन आर्मी का ये जो स्पोर्ट्स एक्टिविटी यहाँ ALG ग्राउंड सुरनकोट में चल रहा है। गुलिस्तान पे खबरों का सिलसिला यूं चलता रहेगा। फिलहाल न्यूज ब्रीफ में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।